ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा,
Shanti and a very warm welcome to the 4-day series of Basic Raj Yoga Meditation course organized by the Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya and the medical wing of Raj Yoga Education and Research Foundation. Yesterday, in our first day session, we got to know about our real self, of whom we really are, our innate virtues, powers and potentials. The topic of the second day session today is Realizing the Supreme. Today, we will know about that one entity to whom we really belong to. We have been searching for him since ages. We have called out to him in our prayers using different names. We have also blamed him for anything and everything that went wrong with us. Sometimes we think, does God really exist? Does he know me, see me, and hear me? Also, do we know what relation we have as souls with the Supreme Soul? Do we know about his role and divine responsibilities that he has in the world drama? So today, let us find out the answers to all these questions. To guide us on this topic again, we have Sister Monica from Delhi. Sister Monica is a brand storyteller, digital strategist, entrepreneur, and the recipient of many business awards. She has used the practice of Raj Yoga meditation to overcome many challenges she faced since childhood. She has been associated with the Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya for over 35 years. Before we move on to the session, please make note of a few instructions. Please keep a pen and a diary ready with you so that you may note down any questions you have or any point which might interest you. If you have any questions, you can send those questions to us on the WhatsApp number 9594986391. You may also type those questions on YouTube or Facebook chat section wherever you're watching the session. If you wish to continue to be in contact with us and learn more about Raj Yoga meditation after the 4-day series is over, you can send us your details like your name, your designation, your WhatsApp number and your place on the WhatsApp number 9594986391. Also, we request you to watch the session with full attention from a place where there are no disturbances or distractions. So now, I extend a very warm welcome to Sister Monica. She will also conduct a short guided Raj Yoga meditation for us towards the end of the session. So over to Sister Monica. Om Shanti. ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे दूसरे सत्र में, नोइंग गॉड एंड रियलाइजिंग गॉड। जैसा कि हमने पिछली बारी पहले सत्र में सुना, हु एम आई, नोइंग माई सेल्फ, नोइंग माई ट्रू आइडेंटिटी। हम कहते हैं हम इस शरीर के द्वारा चलते हैं, हम इस शरीर के द्वारा बोलते हैं, हम इस शरीर के द्वारा देखते हैं। तो ये कौन देखता है? ये चैतन्य सत्ता कौन है जिसके इस शरीर के होने में हम कहते हैं कि ये जीव आत्मा है, और शरीर से जैसे ही ये निकल जाती है तो हम कहते हैं अरथी, अर्थात अजमा रथी, बिना रथी के। तो वो रथी का जो हमें ज्ञान मिला वो है आई एम अ सोल। सोल कहें, साइकी कहें, एनर्जी कहें, रूह कहें, शक्ति कहें, प्राण कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। फिर हमने जाना कि यही शक्ति रिस्पॉन्सिबल है हमारी फीलिंग्स के लिए। वॉट वी फील थ्रू दिस बॉडी। ये शक्ति रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट इमोशंस। तो ये जो आत्मा है हमारे शरीर में विद्यमान चैतन्य सत्ता है जो अजर अमर अविनाशी है, एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। हमने इसकी 3 सुषुप्त शक्तियों के विषय में भी समझा, मन, बुद्धि, संस्कार। ये भी जाना कि आत्मा सतोगुणी स्वरूप है। आत्मा को नॉलेज चाहिए। नॉलेज से हमारे अंदर प्योरिटी आती है, जिसको हम कहते हैं शुद्धि आती है।
और जहाँ हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है वहाँ सुख, शांति, आनंद और प्यार ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जहाँ ये है वहाँ ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सशक्त अर्थात शक्ति स्वरूप हो जाता है। इस आत्मा की 3 चैतन्य जो सत्ताएं हैं, जिसको हम कह सकते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, ये इसकी 3 शक्तियां हैं, उसके विषय में भी हमने जाना। तो जहां आत्मा की बात होती है, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली हर व्यक्ति इस बात को समझता भी है और एग्री भी करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस चीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। पर जब बात होती है कि आत्मा को ये सब चीजें चाहिए, प्रश्न उठता है ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो क्या कभी आपने सुना है कि आप किसी से कहें कि ये लो 5 रुपए लो और जाके शांति खरीद लाओ, या अच्छा लो 1000 रुपए लो और सुख खरीद लाओ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई मॉल हमको ये चीजें सेल नहीं कर सकता या ये हमें दे नहीं सकता। यदि हम कहें कि हमारे माता पिता भी हमको बहुत प्यार करते हैं, पर जरूर है इस बात को समझना कि हर फिजिकल बीइंग की एक अपनी लिमिटेशन है। पर हमें जीवन में ये 7 बातें, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति हर समय चाहिए। 24/7 चाहिए, 365 डेज इन अ ईयर चाहिए, अनकंडीशनली चाहिए। मैं आपको दूं तो आप मुझे देंगे नहीं, हर समय मुझे इन शक्तियों की प्राप्ति चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा और कौन हमें अनकंडीशनली 24/7 दे सकता है? इसके लिए चाहे हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गए, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे हमारी झोली सदैव खाली ही रही, हम मांगते रहे। पर प्रश्न उठता है मांगे भी किससे? तो जरूरी है ये जानना हम सभी के लिए कि उस परम सत्य की क्या पहचान है। कौन है वो परमात्मा जो हमें ये 24/7 दे सकते हैं, हमको एम्पावर कर सकते हैं। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो इस चीज के सागर हैं। तो जब बात होती है परमात्मा के विषय में, तो कहा गया है जितने लोग उतनी बातें। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तुंडिर तुंडिर मते बिना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इस पर परिभाषा है। तो आइए देखते हैं कि परमात्मा के विषय में कितनी मान्यताएं हैं। मूल रूप से देखा गया है कि भगवान के विषय में लोग 6 प्रकार की मान्यताएं रखते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि हम कुछ समय के लिए इन मान्यताओं को सिर्फ डिटैच होकर के सुनेंगे, समझेंगे कि लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं। मैं यहां पर आपको आज एक भगवान की या परमात्मा की या गॉड की एक नई डेफिनेशन नहीं दूंगी, अपितु आज हम लॉजिकली इस चीज को समझेंगे, अपनी बुद्धि से इस बात को एनालाइज करेंगे और समझ करके फिर हम एक निर्णय लेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान के विषय में पहली मान्यता। लोगों ने कहा प्रकृति ही परमेश्वर है, अर्थात नेचर इज गॉड। हम बचपन से देखते आए, लोग जल की पूजा करते हैं, गंगा के रूप में उसकी आराधना करते हैं। लोग आग की भी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं और आग की पूजा करते हैं। कुछ लोग पेड़ों के आसपास जाकर के चक्र लगाते हैं और उसके आगे मनोकामना रखते हैं। जरूर है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। नेचर को गॉड भी कहा गया है, क्योंकि जो भी जीवन में हमें कुछ देता है हम उसको देवता कहते हैं। सूर्य देव के रूप में हमने उसकी पूजा करी। इंद्र देव जो हमें पानी देते हैं उसके रूप में हमने उसकी पूजा करी।
दूसरी मान्यता जो लोगों की है वो है आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही जाकर के परमात्मा बन जाती है। जिसको ये भी कहे कि बुदबुदा पानी से निकला और फिर जाकर के समुद्र में अर्थात पानी में समा गया। तीसरी मान्यता जो लोगों की है वो है भगवान अर्थात परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। सबके अंदर भगवान ओमनी प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आपके अंदर भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है। इस सकल हम सृष्टि कहें तो हर चीज में आज परमात्मा व्यापक है। हम समझेंगे कि क्या ये बातें सत्य हैं। चौथे प्रकार के लोगों ने कहा कि ईश्वर ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म महतत्व इज गॉड। पांचवें प्रकार के लोगों ने कहा कि परमात्मा निराकार है, अर्थात न उसका नाम है न उसका रूप है, वह अमूर्त है। छठे प्रकार के लोगों ने कहा कि परमात्मा साकार है। जब जब इस धरती पर ग्लानि बढ़ी, अत्याचार हुआ तो परमात्मा किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी के शरीर का माध्यम लेकर के अवतरित हुआ। तो वहां खड़ा एक व्यक्ति जो इन बातों को सुन रहा था और इन बातों का श्रवण कर रहा था, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि वाह, भगवान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। कोई कहता है नेचर इज गॉड, कोई कहता है आत्मा सो परमात्मा, कोई कहता है परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा साकार है। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। अगर परमात्मा है तो स्वयं आकर के बताए कि क्या इन सबको मिलाने से परमात्मा बन जाएगा या परमात्मा एक है, वो सत्य है, वो कौन है, वो स्वयं आकर के बताए। इसमें मुझे एक बड़ी हंसी की कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदासों को हाथी घर में ले जाया गया और जब उनको कहा गया कि भाई छू करके बताओ कि हाथी कैसा है, तो किसी ने उसकी सूंड छुई और कहा भाई हाथी तो सांप जैसा है। किसी ने उसके पांव छुए तो कहा हाथी तो खंबे जैसा है। जिसका हाथ उसके पेट पर गया तो उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा है। किसी ने उसके कान छुए तो कहा अरे भाई नहीं, हाथी तो सुपड़े जैसा है, अर्थात पंखे जैसा है। जिसने उसकी पूंछ छुई उसने कहा तुम सब गलत हो, हाथी तो रस्सी जैसा है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सबने ठीक कहा? इन सबको मिला करके सुपड़े को, खंबे को, सांप को, रस्सी को मिला देने से हाथी बन जाएगा? या हाथी कुछ और है? जो हाथी जिसने देखा हो, आंखों वाला मनुष्य, वही उस हाथी के विषय में बता सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना जरूरी होगा, इसी प्रकार जैसे कि हमने भगवान को विभिन्न बातों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर आपको एक आज कसौटी देना चाहूंगी। जिस प्रकार एक ज्वेलर जिसके पास एक बहुत सुंदर कसौटी होती है, कसौटी टाइप का पत्थर होता है, उस पत्थर पर घिस करके वो सोने का मूल्य बता पाता है। वो बता पाता है कि ये कितना कैरेट का सोना है, ये सच्चा सोना है या ये रोल गोल्ड है, रियल गोल्ड है या रोल गोल्ड है, उसके विषय में हमें बता पाता है। उसी प्रकार आज हम सभी भी एक इंटेलिजेंस से इस बात को समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा कौन है। इसके लिए आज हम आपको 5 बातों की कसौटी देंगे। परमात्मा हम उसको कहेंगे, ही, शी, इट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल परमात्मा, जो ये 5 बातें प्रूफ करके बताए। पहली बात, परमात्मा
सर्वधर्म मान्य हो, अर्थात ही शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, सेक्स का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसे परमात्मा माने। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू ऑल। दूसरी बात, परमात्मा सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा कोई नहीं हो। उसका कोई मम्मी डैडी, उसका कोई टीचर, उसका कोई सदगुरु, वो किसी से नॉलेज की आश नहीं रखता हो, वो किसी से सदगति की आश नहीं रखता हो, उसका कोई चाचा मामा नहीं हो, वो सबका माता पिता हो। तीसरी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, बियॉन्ड हो, यूनिक पर्सनालिटी हो, अर्थात वो इस जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा हो। चौथी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, ओशन ऑफ नॉलेज है, नॉलेजफुल हो, उसको किसी से ज्ञान नहीं मांगना पड़ता, वो नॉलेजफुल है। पांचवी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, गुणों का सागर हो, गुणों का, ज्ञान का, शक्ति का, हर चीज का वो सागर है। तो आइए समझते हैं कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्व धर्म मान्य हो, अर्थात डिफरेंट धर्मों में, चाहे आप उसे भगवान कहें, चाहे आप उसको गॉड कहें, चाहे आप उसको अल्लाह कहें, चाहे आप उसको ईश्वर कहें, लेकिन हर धर्म में उसको चाहे किसी भी नाम से बुलाया हो, बट रेफर हम उस भगवान को ही कर रहे थे। किसी भी धर्म में जाइए, चाहे क्रिश्चियनिटी में जाए, क्या कहा क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट एंड माइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। चाहे आप सिखिज्म में जाएं, वहां पर क्या कहा गुरु नानक देव ने? उन्होंने कहा कि भगवान एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु, वो एक है, निराकार है, ज्योति बिंदु है। हिंदू धर्म में भगवान के लिए उसको निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा के रूप में पूजा गया, शिव के रूप में पूजा गया। यदि हम इस्लामिज्म में जाएं तो उन्होंने भगवान को नूरे इलाही के रूप में कहा। यदि हम बुद्धिज्म में जाएं तो उन्होंने भी चिन कौन शेकी, अर्थात शांति का दाता एक, उसके रूप में पूजा उसको। यदि आप जैनिज्म में जाएं तो उन्होंने भी सिद्ध शिलापति के रूप में भगवान की मान्यता करी, भगवान को पूजा गया। भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वोच्च है, अर्थात उसका कोई माता पिता नहीं है, वो सबका माता पिता है। भगवान का कोई गाइड नहीं है, वो स्वयं का गाइड है। उसका कोई टीचर या उसका कोई सतगुरु नहीं है। तभी हमने भगवान के लिए कहा गया है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवः देवः। ये भगवान के विषय में कहा गया है। वो सबका माता पिता है, टीचर है, साजन है, सखा है, खुदा दोस्त भी कहा गया है। भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, अर्थात वो इस जन्म मरण के, जन्म और मृत्यु के चक्र से न्यारा है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो भोगता है। इसलिए भगवान सुख दुख के चक्र से भी न्यारा है, पार है। क्योंकि जन्म नहीं लेता, इसलिए कर्म के फल से भी न्यारा है। वो अजन्मा है, अभोगता है। भगवान हम उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ है। तभी भगवान के लिए कहा गया है वो त्रिकालदर्शी है।
अर्थात उसको तीनों कालों का ज्ञान है, आदि, मध्य और अंत का पूरा उसको नॉलेज है। भगवान त्रिनेत्री भी कहा गया है, अर्थात उसके पास ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र हम बच्चों को प्रदान करते हैं, जिससे हमको भी ये समझ मिलती है। भगवान को त्रिलोकी नाथ भी कहा गया है। तीनों लोकों का वो नाथ है। साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम परलोक का भी वो ज्ञाता है। भगवान हम उसे कहेंगे जो त्रिमूर्ति का, त्रिदेव का रचयिता है। तभी उसको क्या कहा गया है? GOD, जेनरेशन करवाता है, ऑपरेशन कराता है और इस आसुरी सृष्टि का विनाश अर्थात डिस्ट्रक्शन कराता है। जेनरेशन अर्थात इस नई सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा इस आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। तभी उनको कहा गया है वह सत्यम, शिवम और सुंदरम है। भगवान के लिए कहा गया है वो सर्व गुणों में अनंत है। सर्व गुणों में कहो, सर्व शक्तियों में कहो, भगवान सागर है। वो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुखों का सागर है, शांति का सागर है। आप जितना लेना चाहें उस सागर से ले सकते हैं, वह अखुट है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि पूरे सागर को हम स्याही बनाएं और इस पूरी सृष्टि को हम कागज बनाएं और पूरे वन की हम लेखनी बनाएं और स्वयं मां शारदा बैठ करके उस भगवान की महिमा लिखें, तो भी इतनी अनंत है कि आप उस महिमा को लिख नहीं सकते, उसका पारावार नहीं है। भगवान सर्व गुणों में अनंत है। तो आइए इन बातों को आज हम उन 6 मान्यताओं पर, इस कसौटी पर कस के देखेंगे कि वो 6 मान्यताएं अर्थात प्रकृति ही परमेश्वर है, आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है या ब्रह्म ही ईश्वर है और परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है। इन 6 बातों को इन 5 कसौटियों पर कस के हम देखेंगे कि इसमें से क्या सारी बातें सत्य हैं या इसमें से कोई एक सत्य है जो इस 5 कसौटियों को प्रूव करता है। तो आइए पहली मान्यता को देखते हैं, अर्थात प्रकृति ही परमेश्वर है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जो देता है वो देवता बन जाता है। आज यदि हम देखें तो इस प्रकृति के 5 ही तत्व ने, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, पर हमने इस प्रकृति को रिटर्न में क्या दिया? इस जल को हमने दूषित कर दिया, पानी का भी हमने पॉल्यूशन कर दिया, इस एयर में हमने विभिन्न प्रकार के गैसेस रिलीज करके फैक्ट्रीज के माध्यम से हमने इसको भी दूषित कर दिया। लेकिन प्रकृति कॉन्स्टेंटली हमको देती जाती है। तभी आज प्रकृति की विभिन्न प्रकार से लोगों ने पूजा करी। बट वास्तव में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है जिसने इस सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है? वो चित्रकार कौन है जिसने इस सुंदर प्रकृति का निर्माण किया है? तो जरूर है इस प्रकृति से भी कोई ऊंच है, जिसने परमात्मा है, जिसने इस प्रकृति का चित्रण किया है। वास्तव में आज 3 सत्ताओं में इस विश्व का कार्यभार चलता है।
एक है पुरुष सत्ता अर्थात आत्मिक सत्ता, जिसको हमने कहा अजर अमर अविनाशी है। दूसरी है प्रकृति सत्ता, वो भी विनाश को नहीं पाती है, उसका भी परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और तीसरी है परमात्म सत्ता। तो तीन सत्ताओं में आज हमारा ये खेल चलता है। और वास्तव में प्रकृति एज अ परमात्मा, सर्वधर्म वाले लोग इस बात को नहीं मानते हैं। ना ही प्रकृति को हम सर्वोच्च कह सकते हैं, ना ही प्रकृति को हम सर्वज्ञ कह सकते हैं। तो पहली मान्यता पांचों बातों की कसौटी को प्रूव नहीं करती। अब हम आते हैं हमारी दूसरी मान्यता पर, आत्मा सो परमात्मा, जिसके लिए कहा गया है बुदबुदा सागर से निकला और सागर में समा गया। अर्थात उस पानी के बुदबुदे का स्वरूप समाप्त हो गया। हमने पहले चैप्टर में इस बात को भली भांति समझा था कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, कोई तलवार आत्मा को काट नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है। यदि हम ये कहें कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, अर्थात बच्चा ही स्वयं का बाप बन जाता है। ये कोई डिग्री नहीं है जो हमें प्राप्त करनी है। बाप अलग है, बच्चा अलग है। एक बच्चा बाप के समान स्वरूप ले सकता है, उसका स्वरूप रिजेंबल कर सकता है, अपने माता पिता के समान हो सकता है। पर कोई भी बच्चा खुद का बाप नहीं बन सकता। यदि हम इस बात को जरा और अच्छी तरह से समझें, मानो कोई बच्चा है, कोई परिवार में किसी फादर का देहांत हो जाता है, उसके 5 भाई बहन हैं। जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है, उनको उनका लालन पालन पोषण करता है। सारे छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई बिल्कुल हमारे फादर की तरह है। पर क्या वो उसको फादर कहेंगे? नहीं। क्या कोई बच्चा खुद का बाप बन सकता है? नहीं बन सकता। बच्चा बाप समान बन सकता है, पर आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकती। तभी हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। हम क्यों नहीं कहते कि मैं ही माता पिता हूं, मैं ही बंधु सखा हूं? ये बात कहना रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा। कभी हम देव परमात्मा, पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा कभी नहीं कहते। तो ये बात कहना भी रॉन्ग है। तीसरी मान्यता अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा हम सब के अंदर विराजमान है। अब यहां पर लॉजिकल माइंड से यदि हम सोचें कि आज संसार में इतने मर्डर्स बढ़ रहे हैं, आज कोई किसी का शोषण कर देता है, रेप्स बढ़ रहे हैं, तो यदि परमात्मा मेरे अंदर व्यापक है, हम सभी के अंदर परमात्मा व्यापक है, बैठा हुआ है, तो क्या ये परमात्मा के कर्तव्य है? सोचने की बात है। आज बाहर आपके 2 बच्चे लड़ रहे हों और पेरेंट्स वहीं बैठे हैं, तो पूछेंगे ना कि भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, क्या तकलीफ है तुम्हें क्या चाहिए? वो भी अपने 2 बच्चों को, लड़ते हुए बच्चों को छुड़ाएंगे। तो परमात्मा जिसके हम सभी बच्चे हैं, उसके बच्चे आज रेप्स करते हैं, मर्डर करते हैं, और वो अंदर बैठा हुआ कुछ नहीं बोलता। आज यदि हम एक रॉड को हीट करें, नेचर भी अपनी पावर
ट्रांसफर कर सकता है उस रॉड के अंदर। वो रॉड भी रेड हॉट हीटेड हो जाती है और परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ कुछ नहीं बोलता। आज दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, ना चाहते हुए भी वो लोग कह देते हैं कि ऊपर वाला जाने। क्यों नहीं कहते अंदर वाला जाने? अर्थात परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। यदि किसी ने गीता पढ़ी हो तो गीता में भी बहुत सुंदर रूप से कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब इस धरती पर घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है, तब मैं इस धरती पर आता हूं। मैं आप सबके अंदर विराजमान नहीं हूं, पर हां, इस बात को अगर हम कहें कि ये एक भावनात्मक सत्य है तो ये कहना सत्य होगा। वो कैसे? जब कली काल शुरू हुआ तो जितने भी महंत संत थे उन्होंने देखा कि मनुष्य बहुत अनर्थ करते जा रहे हैं। इनको ये बात डराना जरूरी है कि भगवान सब में व्यापक है और तुमको देख रहा है। उनके मन में एक बहुत शुद्ध भावना थी कि शायद मनुष्य डर के कारण ये जो अधोगति के कार्य कर रहा है, शायद वो ये कार्य करना छोड़ देगा। इसलिए इस भावना से उन्होंने कहा कि तुम यदि कोई बुरा कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहा है। वो डर उन लोगों के अंदर पैदा करने के लिए उस भावना से ये बात कही। आज यदि हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है। वास्तव में ये एक बहुत ऊंची भावना है कि आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई फील गॉड विद माई सेल्फ। जितने भी अनन्य भक्त हुए हैं, मीरा थी, प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद, इन सब ने कहा कि जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है। अर्थात क्या कि जब आप किसी के प्यार में खोए हुए होते हो, जिसे हम कहते हैं समाये हुए होते हो, तो यू आर लॉस्ट। आप हर चीज में उस व्यक्ति के स्वरूप को देखते हो। तो ये भी एक बहुत ऊंची भावना थी। पर यदि हम ये कहें कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, शाब्दिक अर्थ पड़ जाए, तो ये बात कहना रॉन्ग है। भगवान का अपना स्वरूप है। चौथी बात लोगों ने कही कि परमात्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। हमने पहले सत्र में इस बात को समझा था कि ब्रह्म परमात्मा के रहने का स्थान है। घर अलग है, घर में रहने वाला व्यक्ति अलग है। वो एक जिसको हम कहें कि वह एक तत्व है, ब्रह्म एक तत्व है। ब्रह्म में रहने वाला वो तथ्य अर्थात सत्य परमात्मा अलग है। आप किसी के घर में जाकर के उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, क्योंकि प्राप्ति सदैव व्यक्ति से होती है। तभी आप आरती में क्या गाते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर हो और तुम सबके स्वामी हो। तो ब्रह्म परमात्मा के रहने का स्थान है, परमात्मा ब्रह्म नहीं है। पांचवी मान्यता जो कही कि परमात्मा निराकार है। लोगों ने कहा कि निराकार अर्थात ना नाम है, ना रूप है, ना देश है, ना काल है, अर्थात वो अमूर्त है। अब प्रश्न उठता है, लॉजिकली सोचे कि आज संसार में कोई ऐसी चीज या वस्तु है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो और उसका कोई स्वरूप ही ना हो, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम उसके विषय में कोई बात भी नहीं करते। हंसी की बात है, जब कोई हमारे घर में आता है, हम उससे पूछते हैं
कि आपको क्या चाहिए, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। आप कहते हैं नहीं मैं आपके लिए क्या लाऊं, वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कई बारी हम हंसी में कहते हैं भाई कुछ नहीं की कोई डेफिनेशन तो होगी, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं मेरे लिए पानी ले आओ या चाय ले आओ। तो उनकी कुछ नहीं की डेफिनेशन भी कुछ है। उसी प्रकार जब लोगों ने कहा कि परमात्मा निराकार है, अर्थात ये एक सापेक्षित कंपैरिजनिज्म है। मानो यदि मैं कहूं कि ये कमरा बड़ा है, दैट मीन्स मेरे बुद्धि में कोई छोटा कमरा है। मैं कहूं कि यहां पर बहुत वेल लाइट है, वेल लिट है ये कमरा, अर्थात कोई और भी कमरा है जहां पर रोशनी कम है, तो ये एक कंपैरिजनिज्म है। अर्थात भगवान का स्वरूप तो है, पर उसका स्वरूप हमारे प्रकार का नहीं है। जैसा हमारा ये शरीर है उससे न्यारा उसका स्वरूप है। उसका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ज्योति के समान है। ज्योति का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए लोगों ने उसको निराकार कहा। He doesn't have a body. God doesn't have a body like us. जैसे आत्मा के लिए हमने कहा आत्मा is point of light and might. Soul is point of light and might. एक ज्योति के न्यायी है। तो हम आत्माओं का पिता कौन हो सकता है? पिता परम आत्मा। आप देखो हम कभी भी कहते हैं सदैव परमात्मा को याद करो। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम परम शरीर को याद करो, नहीं, हम परमात्मा को याद करने के लिए कहते हैं। तभी उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा गया। ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप और लिंग अर्थात एक आकृति। तो साइंटिस्ट ने इस शेप को, इस आकृति को बहुत पावरफुल, इसको कहा गया कि दिस शेप रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी। तभी भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगम के रूप में भगवान की पूजा करी गई। भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी छोटे से छोटे गांव में आप पहुंच जाएं, ज्योतिर्लिंगम के रूप में भगवान की पूजा करी गई। हर प्रांत में आपको ज्योतिर्लिंगम का मंदिर ज्योति स्वरूप से आपको मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगम भी भारत में बहुत मशहूर है। उनका नाम है सदाशिव। सदाशिव अर्थात सदा कल्याणकारी, शिव अर्थात शांति दाता, शांति करने वाला। वह परम पवित्र है। ही इज पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। इस रूप में आप देखो सर्व धर्म में भगवान की पूजा करी गई। यदि हम भारत देश में देखें, राम ने रामेश्वरम में शिव की आराधना और पूजा करी। कहा जाता है युद्ध स्थल में जब आप किसी से लड़ने जा रहे हो तो आपको यह पता होना अनिवार्य है उस व्यक्ति की शक्ति के विषय में। राम को रावण से युद्ध करना था और राम को पता था ये भली भांति कि आज ये जो रावण इतना अभिमान कर रहा है, उसने भी शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है। तो यदि मुझे रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे भी उस शिव की आराधना करनी होगी। इसलिए रामेश्वरम में राम ने शिव के मंदिर की स्थापना करी। महावीर जी ने भी सिद्ध शिलापति की पूजा करी, उसको भी ज्योति के रूप में पूजा हुई। आप देखें यदि जापान में आप जाएं तो वहां पर भी शिंटोइज्म में चिनकॉन शेकी अर्थात वो एक लाल रंग का पत्थर जिसे 3 फीट दूर और 3 फीट ऊंचा एक थाली में रखते हैं और कहते हैं चिनकॉन शेकी अर्थात शांति का दाता एक है। ज्योति बिंदु लाल रंग के आकार में उसकी पूजा करते हैं। यदि हम मक्का मदीना अर्थात मुस्लिम धर्म में जाएं
तो जब एक बार इनके धर्म में वाद विवाद हुआ तो ऊपर से आवाज हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम मुझे इस ज्योति के आकार में पूजो। और एक पवित्र काबा का पत्थर जो मक्का मदीना में जाकर गिरा और वहां पर उन्होंने इसको नूरे इलाही के रूप में कहा, अर्थात वो नूर है। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि कहीं भी आप जाओ लेकिन जिंदगी में एक बार मक्का मदीना के दर्शन अवश्य करो, आपकी सारी हज अर्थात मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि हम और भी धर्मों को देखें तो गुरु नानक साहब ने कहा, एको ओमकार सत नाम वाहे गुरु। वो एक है, निराकार है, ज्योति है, अकाल मूर्त है, अजोनी है। उन्होंने भगवान का सही विश्लेषण किया, पर हमने गलती से ये जितने भी भगवान के बच्चे कहो या मैसेंजर्स कहो, हमने इन्हीं को ही भगवान मान लिया। क्राइस्ट ने कहा, गॉड इज लाइट एंड माइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। आज यदि साईं बाबा को देखें तो उन्होंने भी क्या कहा, अल्लाह मालिक, मौला मालिक, सबका मालिक एक। वो कितनी सुंदर रूप में भजन गाते थे और उस परमात्मा को याद करते थे और उस एक निराकार ज्योति के लिए उन्होंने अपना इशारा भी ऊपर किया। सभी धर्मों में भगवान को एक ज्योतिर्लिंगम माना गया। यदि हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो भगवान के नाम जो गाए हुए हैं वो गुण और कर्तव्यवाचक है। पूरे भारतवर्ष में शिव के मंदिर बनाए हुए हैं। शिव हमने जाना अर्थात कल्याणकारी, शांति का दाता। इसलिए जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, हर नाम गुण और कर्तव्य वाचक है। महाकालेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, अमर आत्माओं का जो नाथ है, काशी विश्वनाथ जो सारे विश्व की आत्माओं का नाथ है, राम का भी जो ईश्वर है, सोमनाथ जो हमें ज्ञान का ये सोम रस पिलाने वाला वो नाथ है। ईश्वर या नाथ शब्द उसकी महिमा में गाया हुआ है। आज भारतवर्ष में चारों ही जगह यदि हम जाएं तो देवताओं की जो पूजा है वो एरिया वाइज गाई हुई है। यदि नॉर्थ में देखें तो राम की, श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि ईस्ट में जाएं तो श्री दुर्गा या श्री काली की पूजा की जाती है। यदि आप नीचे आए साउथ की तरफ तो श्री वेंकटेश, श्री बालाजी की पूजा करी जाती है। यदि हम गुजरात की तरफ या कहें वेस्ट की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहाँ श्री गणपति की पूजा करी जाती है। कहते हैं ना, गणपति पापा मोरया। लेकिन स्वयं पिता परमात्मा की पूजा सारे ही भारतवर्ष में की जाती है। भगवान के लिए कहा गया है वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है, अर्थात तभी उसका नाम शिव शंभू कहा गया है। अर्थात वो स्वयं इस धरती पर, भू पर प्रकट होते हैं। तभी उसके लिए हम कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं। आप देखो, आज संसार में किसी का भी बर्थडे हो, चाहे वो बच्चा रात में भी पैदा हुआ हो, तब भी हम उसका बर्थ डे मनाते हैं। लेकिन शिव की हम सदैव रात्रि मनाते हैं। क्यों? इसका प्रतीक है कि भगवान इस काली घोर अंधियारी रात, जहां सर्व वाइसेस विदित है, सब यहाँ प्रेजेंट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब तरफ व्यापक है,
घर घर में आज दुशासन है, अर्थात हर घर में कोई अनुशासन आज बचा ही नहीं है। हर घर में जहां दुर्योधन व्यापक है, अर्थात वो बच्चे जो धन का दुरुपयोग करते हैं। हर घर में जब शकुनी जैसे लोग, अर्थात शकुनी जैसे मामा कहो या लोग विद्यमान हो जाते हैं, तब परमात्मा इस धरती पर प्रकट होते हैं। तभी उनको शिव शंभु स्वयं धरती पर आकर के प्रकट होते हैं और हमें स्वयं का ज्ञान देते हैं। आप देखो, शिव के लिए कहा गया है कि उसको हमेशा, उसका जो मंदिर है, मंदिर में भी सेपरेट स्थान पर रखा जाता है। सभी देवताओं की प्रतिमाएं एक जगह लगाते हैं, लेकिन परमात्मा की जो प्रतिमा है उसको सदैव अलग रखा जाता है। और शिव की स्थापना का, शिव के मंदिर की स्थापना का भी बहुत सुंदर रहस्य है। सारी प्रतिमाओं को गेट्स के थ्रू लाया जाता है, लेकिन शिव की प्रतिमा को कभी भी गेट्स के द्वार से नहीं लाया जाता। इसको सदैव ऊपर से स्थापित किया जाता है। तभी शिव के मंदिरों को गोल गुंबद का आकार दिया जाता है। शिव के ऊपर 3 रेखाएं दिखाते हैं और त्रिपुंडी बनाते हैं। इसका भी बहुत सुंदर रहस्य है। शिव त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत के तीनों कालों का वो ज्ञाता है। वह त्रिनेत्री है, उसके ऊपर 3 ये नेत्र बनाया जाता है, अर्थात वो हमको इस ज्ञान से लाभान्वित करते हैं, वो विजडम देते हैं, नॉलेजफुल हैं। भगवान को त्रिलोकी नाथ भी कहा गया है। भगवान को त्रिदेव का रचयिता भी कहा गया है। इसलिए शिव के ऊपर हम 3 पत्र वाला बेल पत्र भी चढ़ाते हैं, अर्थात वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, तीनों देवताओं का भी रचयिता है। आप देखो, सभी देवताओं के ऊपर हम बहुत सुंदर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, बहुत सुंदर 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। बट जब शिवरात्रि होती है तो शिव के ऊपर हम अख, धतूरा, बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी होगा कि ये प्रतीक है हमारे वाइसेस का। अख, धतूरा जो ऐसे विकृत जो फल दिखाए हैं वो हम परमात्मा के ऊपर चढ़ाते हैं। वो कहता है, बच्चों मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर जो ये 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में परेशान कर रहे हैं, ये तुम मेरे ऊपर चढ़ा दो। तभी उसको नीलकंठ महादेव भी कहा गया है। वो हमारे सारे वाइसेस हर लेता है और हमें शांति प्रदान करता है। शिव के ऊपर कहा गया है कि उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद कभी वापस नहीं मिलता। तो ये जो अख, धतूरा हम चढ़ाते हैं, उसके ऊपर बेर चढ़ाते हैं, ये प्रतीक है कि सारे मन में जो वैर है, वैर भाव है, वो सब भगवान के ऊपर अर्पित कर दो। शिव की प्रतिमा पर दूध चढ़ाया जाता है और वो भी पानी मिला हुआ, अर्थात क्या, भगवान रिच और पुअर सबका पिता है। वो भोला नाथ है। वो हमसे सब वाइसेस लेकर के हमको सुख शांति से भरपूर कर देता है। यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि भारतवासियों ने एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने शिव और शंकर को एक मान लिया। जब भी हम शिव को याद करते हैं तो हमारे सामने आप देखो ये लिंग स्वरूप आ जाता है। तो भगवान का नाम भी अलग है। यहाँ शिव है, उधर है शंकर। उनका रूप भी अंतर है। ये लिंग स्वरूप है और यहाँ पर उनका शरीर दिखाया है।
यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि इनका कर्तव्य भी अलग है। उनका कर्तव्य है शिव अर्थात कल्याणकारी, और इधर यदि हम देखें तो शंकर अर्थात विनाशकारी। शंकर जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भगवान ने दिया था। वो पोर्टफोलियो था कि जैसे ही तुम्हारा तीसरा नेत्र खोले तुम इस आसुरी सृष्टि का विनाश कर दो। तभी दिखाया है शंकर जी सदैव किसी मुद्रा में बैठकर किसी की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो किसकी पूजा आराधना उन्होंने करी? उनसे भी कोई सुप्रीम था तो उसकी पूजा करी। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। एक बारी एक भिखारी था, तो वो रोज बैठता था, जाता था, तो राजा रोज वहां से निकलते थे और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा उनको देते हुए जाते थे। ऐसे ऐसे उसकी जीविका चलती जा रही थी। एक दिन उस भिखारी को एक संकल्प आया कि ये राजा रोज कहाँ जाता है, कहाँ से इसके पास इतना धन आता है। जरूर है ये सुबह कहीं जाता होगा, इसको बहुत धन की प्राप्ति होती होगी, तभी ये आकर के कुछ कुछ हम सभी भिखारियों के बीच कुछ ना कुछ हमको ये दे करके जाता है। तो मैं आज जाकर के देखूंगा कि सुबह सुबह राजा कहाँ जाते हैं। तो भिखारी बहुत उत्कंठा के साथ सुबह सुबह महल की ओर चल पड़ा। महल पर द्वारपाल से पूछा, इस समय राजन कहाँ होंगे? तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, राजन इस समय मंदिर पूजा के लिए गए हैं। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी प्लीज अंदर जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांति से एक तरफ दूर खड़ा हो जाऊंगा। तो जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके उसको अंदर जाने दिया। वो शांति से दूर खड़ा हो गया और देख रहा था कि राजा अपनी पूजा आराधना में लीन थे। राजा ने अपने हाथ जोड़े हुए थे और भगवान के सामने गुहार लगा रहे थे कि हे परमात्मा, आप मेरी झोली भर दो, मुझे इतना धन दो कि मैं अपने राज्य में सबको ये धन बांट सकूं, मेरी झोली कभी अखुट ना हो। तो भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ये राजा तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। देखो सामने हनुमान जी के कैसे भीख मांग रहे हैं। तभी भिखारी को और संकल्प चले और वो वहां से उठकर चला गया कि राजन भी भिखारी है, मुझे इससे भीख नहीं मांगनी है। चलते चलते रास्ते में भिखारी को और संकल्प आए कि राजन हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त होंगे, एक भक्त उसमें से राजन भी है, तो राजा को कुछ ज्यादा दिया होगा। फिर भिखारी को संकल्प चले। भिखारी ने सोचा, पर हनुमान जी भी तो राम के भक्त हैं, राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, पर पूरे संसार में राम जी के भी बहुत भक्त हैं। राम की आराधना जब हनुमान जी ने करी तो राम ने उनको भी कुछ दान दक्षिणा दी होगी, भले सबसे कुछ ज्यादा दी होगी। अब राम ने किसकी पूजा करी? राम ने शिव की पूजा करी। शिव के भी बहुत भक्त हैं, कुछ राम को ज्यादा दिया होगा, बाकी औरों को भी दिया होगा। तो ये वाया 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 आते आते मेरे पास तो बहुत कुछ बहुत कम आता है, तो क्यों ना मैं भी उस पिता परमात्मा को याद करूं। तो यहां पर मैं आप सभी को भी यही ध्यान खिंचवाना चाहूंगी कि कहीं हम भी उस वाया 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 में आते आते हमारी भी झोली में कुछ कम तो नहीं आ रहा, कहीं हम भी इस चक्कर में फंस तो नहीं गए हैं। तो आज जब हमें स्वयं उस परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ है कि परमात्मा
का नाम क्या है? परमात्मा का नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात शांति करने वाला। आप देखो, आज एक बिजनेसमैन जब अपना बही खाता खोलता है तो क्या कहता है? लगाओ शिव, अर्थात बिंदी लगाओ। तो हर धर्म में आज इस बात की मान्यता की गई है। नाम है भगवान का शिव। उसका फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ क्या है? वो एक ज्योति बिंदु है। हम सभी आत्माओं का वो पिता परमात्मा है। मैं बचपन में सुना करती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं जब छोटी थी तो अपने माता पिता से पूछती थी, हर एक के माता पिता अलग हैं। आज हमारे चाचा के बच्चे जो हैं उनके भी माता पिता अपने अपने हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? आज इस बात की पूर्ति हुई है। हम सभी शरीरों के अंदर जो आत्मा है, हम सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा शिव निराकार एक है। तो वो ज्योति बिंदु का उसका स्वरूप है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो सर्व गुणों में अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है। ये 5 बातें सर्व धर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत है। उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है वो ब्रह्मलोक का निवासी है, वो परम धाम का निवासी है, वो शांति धाम का निवासी है, वो 7वें आसमान पे रहने वाला शांति का दाता है। उसका ऑक्यूपेशन है इस सृष्टि पर जो अब आसुरी हो चुकी है, पतित हो चुकी है, पतित पुरानी हो चुकी है, तभी हम उसे कहते हैं हे पतित पावन आओ। इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करना ये उस परमात्मा का कर्तव्य है। तो हमने आज इस परमात्मा के सत्य परिचय के विषय में जाना। तो आइए चलते हैं एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर। सिट बैक कंफर्टेबली रिलैक्स्ड इन अ वेरी रिलैक्स्ड पोस्चर। कुछ समय के लिए स्वयं को ये शुद्ध संकल्प दे, अपने मन को कह दे कि ये समय है मेरा स्वयं के साथ, ये समय है उस परमात्मा से मिलन मनाने का। तो जो भी बातें मन के अंदर आ रही हैं उनको बोलो कि हाँ, हम तुमसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पर ये समय है, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरा स्वयं पिता परमात्मा के साथ मंगल मिलन मनाने का। तो बहुत रिलैक्स होकर के बैठ जाएं इन अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। Let go of anything that is coming to you. कोई भी विचार, कोई भी बात जो मन को खींच रही हो, उसको बहुत प्यार से समझाएं। अभी नहीं, कुछ देर के बाद। ये समय है मेरा स्वयं पिता परमात्मा के साथ मिलने का। देखें अपने आप को। ये पैर मेरे हैं,
इन पैरों के द्वारा मैं चलती हूं। ये हाथ मेरे हैं। इन हाथों के द्वारा मैं कर्म कराती हूं। ये मुख मेरा है। इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूं। कानों के द्वारा सुन रही हूं। पर मैं इस शरीर में विद्यमान चैतन्य सत्ता हूं। A point of light and might that sits in the center of the forehead. ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, जिसके माध्यम से मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं। पर मैं इन सब से उपराम हूं। मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं, जो परम सत्य है। पिता परमात्मा जो सर्व गुणों में अनंत है, वो मेरा माता पिता है। देखें उस ज्योति बिंदु स्वरूप को। अनुभव करें परमात्मा की शक्तियां उस ज्ञान सूर्य से मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। पिता परमात्मा शांति के सागर है। उनकी शांति की किरणें लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है। एब्जॉर्ब करिए, अनुभव करिए। परमात्मा से गोल्डन लाइट सीधे मेरे मस्तक से मेरे बॉडी के एक एक सेल के अंदर प्रवेश कर रही है। शांति। एक एक ऑर्गन को शांत स्वरूप बना रही है। इन शक्तियों में सच्चा प्यार समाया हुआ है। आप प्यार के सागर हैं। और जैसे ही ये प्यार भरी किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही हैं, मैं आत्मा भी प्यार की स्वरूपा बनती जा रही हूं।
अनुभव करें अंदर से कोई भी मनमुटाव है धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है। आपकी शक्तियां मेरे अंतर को सुख प्रदान कर रही है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। देखें आपके चहुं ओर एक प्रकाश का ऑरा बनता जा रहा है और ये प्रकाश की किरणें सारे वायुमंडल को शांत एवं शक्तिशाली बना रहे हैं। कुछ देर इस अनुभव में स्थित हो जाए। और इस अनुभव में स्वरूप बनते जाएं। कहें स्वयं को, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। Om Shanti, and thank you very much, Sister Monica, for giving us the introduction of the Supreme Soul, God, whom we have been searching for so long. You also gave us a brief knowledge and insight into His role, His name, His attributes, His responsibilities, etc. You also gave us a brief experience of the Raj Yoga meditation and how to connect to Supreme Soul to recharge ourselves. Thank you very much. I hope all of you have benefited from today's session. Tomorrow we bring you another beautiful session of Raj Yoga meditation course. So till we meet again, thank you very much. Take care and Om Shanti.